Hello everyone. Now in class 10th mathematics I am going to start linear equation in two variables. As you already know about the linear equation with one variable that you already learned in previous classes, that ax plus b is equals to 0 is the standard form of the linear equation where coefficient of x is a, and when we find out the value of x, you know how to simplify. And why it is linear? Because the power of this variable is 1. That's why it is linear equation in one variable. After that, when you are finding the value of x, it should equal to minus b upon a. This is only one solution of this equation. But in class 10th, we have linear equation in two variables. So here already we know that linear equation in two variables, again the standard form is this: ax plus by plus c equal to 0, where coefficient of x is a, coefficient of y is b, and c is constant term. And we can easily express the value of x in terms of y or value of y in terms of x. But two variables are there and only one equation we have, so we cannot find out the value of x and y numerically. They are dependent each other. That means x depend on y or y depend on x. How it is possible? I am going to show. If we are going to find out the value of x, how it is in the terms of b. So we express ax is equals to minus c minus by. Again x is equals to minus c minus by upon a. So here the value of x is totally depend upon y. So this is an expression in which we can say x is dependent and y is independent. Similarly, we can express the value in the form of y. So by equal to minus c minus ax. So y is equal to minus c minus ax upon b. Again here y is dependent and x is independent. That means when you put value of x, then only you will get some value of y. Okay. So in this chapter we have linear equation, pair of linear equation. That means we need two equation. So the first equation is, I am going to write again ax plus by plus c equal to 0. And if I am going to write one more equation with the same way, then there is no change. These two equations are same. So for equation number this first, we are going to write the coefficient of x is a1, coefficient of y is b1, and this constant c1. Similarly for the second one, a2, b2 and c2, where a1 and a2 are the coefficient of x in these equation, b1, b2 are coefficient of y, c1, c2 are constant term. Now there are some conditions. As you know very well, the two equations are there with the two variables and their powers are 1. That's why it is linear equation. So these linear equation when you solve, it means you should find out the value of x and y. So how it is possible to find out value of x and y? अगर आप कभी कंसीडर करो तो हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं. जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, एज ऑलरेडी यू डिड इन क्लास 9th, तो आपने देखा होगा कि एक लाइन आपको मिलती है ग्राफ पे, तो उसको हम लोग लीनियर ग्राफ बोलते हैं. लाइन बनाते हैं, वेरिएबल्स आप अलग अलग पुट करते हैं, प्लॉट करते हैं, फिर आप बताते हो कि इट इज़ अ लाइन. सिमिलरली अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, दोनों लाइन की ही इक्वेशन है. सो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? या तो लाइन ओवरलैप होगी, या लाइन इंटरसेक्ट होगी, या फिर लाइन पैरेलल होगी. ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास सॉल्व करने के टाइम पर आ सकती हैं. तो कैसे पता चलेगा कि दीज टू इक्वेशंस आर पैरेलल और ओवरलैप्ड और इंटरसेक्टिंग? फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट कंडीशंस. सो द फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले आपको ये दो जो इक्वेशंस देंगे उसमें से x और y के कोफिशिएंट्स को रेशियो में लिखना है. सारे कोफिशिएंट आप पहले कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद रेशियो में चेक करिए. तो फर्स्ट वाली कंडीशन है, इफ़ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन वी कैन से द सिस्टम, मतलब ये जो दो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा? देन वी कैन राइट सिस्टम हैज़ यूनिक सोल्यूशन. यूनिक का मतलब क्या होता है? वन सोल्यूशन.
यूनिक सॉल्यूशन। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है ये जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। If a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then only the system has unique solution. Second condition आपके पास आती है if a1 upon a2 equals to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। मतलब जब आप इनकी वैल्यूज़ निकालोगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वेशन में से देखोगे और जब आप इसमें पुट करोगे तो फर्स्ट टू रेशियोज तो इक्वल आ गए बट इट इज नॉट इक्वल टू विद द थर्ड वन, देन वी राइट सिस्टम हैज, सिस्टम मतलब ये दोनों इक्वेशन को लेकर, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई आंसर नहीं होगा। तब उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोगों को ग्राफ में पैरेलल लाइंस मिलेंगी, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या मिला था, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब भी हमारे पास किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है तो हम उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो हमारे पास होता है इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली लास्ट कंडीशन हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड कंडीशन, वो हमारे पास है इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है कि तीनों रेशियो इक्वल है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सिस्टम हैज़ मेनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे आंसर्स होंगे उसके। और जब बहुत सारे आंसर होंगे और सेम आंसर होंगे तो आप इसको ओवरलैप्ड लाइन, मतलब दोनों इक्वेशन के लिए एक ही आपको लाइन मिलेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप्ड लाइंस। ये जो लाइंस है ओवरलैप हो रही हैं, और इसको भी हम कंडीशन क्या देंगे कि ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसके हमारे पास सॉल्यूशन निकल रहे हैं। क्लियर? सो वी हैव 3 डिफरेंट कंडीशन टू गेट to get the meaning where the lines are intersecting, overlapped और parallel। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हर बार, तब जाके आपको सॉल्व करने के लिए समझ आएगा कि किस टाइप से हमको सॉल्व करना चाहिए। So here I have a quick review about the lines. When the lines are intersecting, then the point of intersection will be the solution, and here the unique solution there. Unique means one solution, okay? And in this time we can say the equations are consistent. The second condition, when the lines are parallel, it means there is no solution because the lines are not intersecting at any point. So no solution and lines are said to be inconsistent. Here the solution was there, that's why it is consistent. No solution, that's why it is inconsistent. And finally, when equations are represented by the same line, that means these two lines are represented with the same line, that means overlapped lines. So the equations are said to be dependent equations, and we have many infinitely solution here. And then we can say system is said to be consistent. So only first one and the last one, that means intersecting points, it means we can say unique solution, and many solution consist, we can say consistent, and no solution we can say inconsistent. Now methods of solving equation in two variables. Here two methods we have. The first method is graphically and the second one is algebraically. But in algebraically also we have three different methods. The first one is substitution. Substitution method. The second one is elimination method. And the last is cross multiplication method. I will teach you about the algebraically method first, because graphically
as already you learnt in class 9, so it is not so tough. When you plot the different values, I will show how to find out whether the equations are consistent or inconsistent. So first I will start with algebraically, and in which I will start with substitution method, later on elimination, and followed by the cross multiplication method. Clear? Here the substitution method, I will explain you first substitution method, and this substitution method they asked in exercise number 3.3 in your textbook. So I will start with the first question. I will explain you. अब जब मैं explain कर दूंगी तो आपको method समझ में आएगा, और उसके बाद आप जितने भी equations हैं आप उसको substitution method से भी solve कर सकते हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका सब्स्टिट्यूशन मेथड से जिस एक्सरसाइज को दिया है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. एंड फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय दिस मेथड, इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो दो इक्वेशंस दी है उनको आप सिर्फ नेम करोगे एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. As per the name of this one, substitution means substitute करना. So don't substitute the values as 1, 2, 3, 4. Simple consider out of the two equation, you consider any one of them. It's not compulsory every time 1 or 2, any you can. So I'm going to start here with the 2. सपोज इसमें क्या करना है, जब दो इक्वेशंस होती हैं इनमें से कोई एक इक्वेशन को आप कंसिडर करो और उसी इक्वेशन में से x की वैल्यू y के टर्म्स में या फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालो, और उसको फिर कहाँ पुट करेंगे, जो बच गई थी, जो रिमेनिंग वाली है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप इक्वेशन 2 से वैल्यू x की निकालते हो तो फर्स्ट में पुट करना, और अगर आप फर्स्ट से इक्वेशन की वैल्यू x की वैल्यू निकालते हो तो सेकेंड में पुट करना. तो हियर आई एम राइटिंग फ्रॉम सेकेंड, जैसे मैं सेकेंड इक्वेशन ले रही हूँ तो मुझे वहां पे x की वैल्यू चाहिए, तो वो लिखा जाएगा 4 प्लस वाई, बिकॉज y उधर शिफ्ट हो जाएगा. मैं इसको थर्ड नंबर की भी इक्वेशन दे सकती हूँ, कोई मैटर नहीं है. अगर आप नंबर नहीं देना चाहते, लीव इट, नो प्रॉब्लम. आफ्टर दैट एज यू रिटन फ्रॉम 2 x इक्वल टू 4 प्लस वाई, फिर यहाँ पे लिखिए आप पुट x इन, मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, क्योंकि आपने वो सेकेंड से निकाली थी. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, तो आपको लिखना पड़ेगा x की जगह पे आपके पास आ जाएगा 4 प्लस वाई, सिर्फ x की जगह पे. फिर ये प्लस और y सेम है तो उसको एज इट इज लिख दीजिए, ये आ गया. तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 14. तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, क्योंकि आपको सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तो आपने इसको सॉल्व करके लिखा y इज इक्वल टू 5. एक आंसर आपको मिल गया. अब आपको फिर से यही वैल्यू उठा के y की जो 5 निकली है कांस्टेंट वैल्यू, आप उसको ये 1, 2, 3 इन तीनों में से किसी में भी पुट करो, कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि 1 में ही डालना है. तो लिखा पुट y इक्वल टू 5 इन फर्स्ट, या थर्ड भी लिख सकते थे. अगर मैं आपको थर्ड लिख के दिखाऊं तो इजी रहेगा. ये आएगा थर्ड इक्वेशन. तो थर्ड अपने पास क्या थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई था. अब आपने y की जगह पे 5 पुट किया तो वो आ गया 9. तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5. अगर आपको इसको चेक करना है, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों का एडिशन 14 है, तो आपने इसको चेक करके देखा 9 प्लस 5 तो वो 14 आ गया. इसका मतलब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर. Now the second question, s minus t equal to 3 and s by 3 plus t by 2 equal to 6. अगेन आप इसको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए. बट कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को ये फ्रैक्शन में जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम लगती है. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एज इट इज़ छोड़ें. अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं विदाउट फ्रैक्शन वाले नंबर में, तो भी आप कर सकते हैं. तो अगर आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल इक्वेशन, एंड हियर इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शन जस्ट टेक एलसीएम एंड मेक द सिंपल इक्वेशन. लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस वन. सो पहले लेफ्ट साइड में आपने एलसीएम लिया तो 6 आया, देन न्यूमरेटर आपके पास आएगा 2s और 3t, दैट इज इक्वल टू 6. अब आप इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36. अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. ये इक्वेशन इसको ही रिप्रेजेंट करती है आफ्टर
फर्दर सिंप्लीफिकेशन। तो कोई चेंज नहीं है इसमें। अगर आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से वैल्यू इसमें पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये उसका सिंप्लीफाइड पार्ट है सेकेंड इक्वेशन का, पर मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद उसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब अगेन सेम प्रोसेस, आउट ऑफ दीज टू यू कैन कंसिडर एनी. So this one is easy for me, so I am taking the value equation number 1 and I will write the value of s in terms of t. So first we have to write here from first s is equals to 3 plus t. वो तो समझ में आ रहा है, माइनस टी इस तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 भी दे दिया। फिर यहाँ पे लिखा पुट वैल्यू ऑफ s फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर 2। 3 में नहीं डाल सकते क्योंकि वो तो उसका नाम है। अब आपने क्या करा 2, फिर s की जगह पे हमको लिखना है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस ये 3t एज इट इज़ है इज इक्वल्स टू 36 अगेन एज इट इज़। अब ओपन करके ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया टर्म्स को और फाइनल करो, एक छोटा सा वैल्यू मिल जाएगी। ये आ जाएगा आपके पास ओपन करने से 6 प्लस 2t, 3t एज इट इज़ था 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करना है इसको और इसको शिफ्ट करना है, तो ये सब तो आपको आता ही है ऑलरेडी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 30 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स वैल्यू t की आपको मिल जाएगी 6, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब ये लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर, बताइए किस में लिखें। सबसे इजी इक्वेशन अपने पास अभी थर्ड वाली है, छोटी सी है। अगर आप चाहें तो इसमें पुट कर दीजिए, अगर आपको लगता है नहीं फर्स्ट वाली इजी है तो आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज थर्ड। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि इसमें डालो, किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को आप डाल सकते हैं जिससे कि आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हमने लिखा पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। तो थर्ड इक्वेशन में s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t था, अब t की जगह पे हम 6 लिखेंगे तो वो हमारे पास 9 आएगी। तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन जो होगा वो s इज इक्वल्स टू 9 है और t इज इक्वल टू 6 है। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो s माइनस टी इक्वल टू 3 था, आप चेक कर लीजिए 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 आ रहा है। तो ये आपके पास साइड बाय साइड वेरिफिकेशन भी होता जाता है। 9 माइनस 6 3, ये फर्स्ट इक्वेशन से पुट किया करके देखा। आपकी मर्जी है, आप एस और टी की वैल्यू किसी में भी पुट करके चेक कर सकते हैं कि वेदर योर सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। Now next in line, 3x minus y equal to 3, 9x minus 3y equal to 9. Again you have to give equation number 1 and 2. Now for the simplification with the same method from equation number 1. So I am going to take equation number 1. From equation number 1, 3x is equals to 3 plus y. So x is equals to 3 plus y divided by 3. I will write this equation as 3. And then I will write that put value of x in equation number 2 because I already found the value of x from 1 in terms of y. So we have, हमको क्या मिलेगा जब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो 9 टाइम्स ऑफ x, तो इंस्टेड ऑफ x अब आपको लिखना पड़ेगा 3 प्लस वाई बाय 3, मतलब x की जगह पे ये वैल्यू पुट करना, माइनस 3y एज इट इज लिखिए इज इक्वल्स टू 9 एज इट इज रहेगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 आया। ये दोनों नंबर सेम है और ऑपोजिट साइन के साथ हैं तो दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास यहाँ पे बचता है सिर्फ 9 इक्वल टू 9। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी इक्वेशन है आपके पास वो सॉल्व आगे नहीं हो सकती क्योंकि जो फाइंड आउट करना था x और y वो तो है ही नहीं। इसका मतलब वो दोनों इक्वेशन को हम सिर्फ एक्सप्रेस करके छोड़ेंगे क्योंकि इसके पास मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन हैव मेनी सॉल्यूशन। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर नंबर कि कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, बहुत होंगे, बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, it can be expressed as, जैसे आपने लिखा था x is equals to 3 plus y by 3 फर्स्ट इक्वेशन से, या फिर अगर आपको लिखना है तो y is equals to 3x minus 3 भी लिख सकते हैं। मतलब आप इसको सिर्फ इतना लिख के छोड़ दीजिए बिकॉज हियर x is dependent and y is independent. Here y is dependent
with the value of x. तो आप जितनी different values यहाँ put करते जाएंगे उतनी different values आपको यहाँ पे मिलेगी. Similarly यहाँ पे भी. So there is not a particular number as a answer. But this question में जो system है many infinitely solution, तो ये आपके पास consistent होगा. Clear? इसके लिए कोई particular answer numerically नहीं लिखेंगे आप. Now देखिए फोर्थ क्वेश्चन में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ये एक इक्वेशन है. दूसरे में 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है. अब इसको सॉल्व करने के लिए भी सेम मेथड यूज करना है. बट कई बार क्या होता है, ये जो डेसिमल के नंबर्स हैं उसके वजह से बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है. अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल रिमूव करें तो डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है तो दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास ये डेसिमल रिमूव हो जाएंगे और फिर ये इक्वेशन इंप्लाई हो जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 एंड सेकेंड वाली इंप्लाई हो जाएगी आपके पास 4x प्लस 5y इक्वल टू 23. अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2. अब सेम मेथड किसी भी एक इक्वेशन को आप कंसीडर करिए और किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करिए. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लोग ने लिखा, वहां से मैंने 2x की वैल्यू निकाली और वो है 13 माइनस 3y. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2. आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 फिर से दे दीजिए. देन उसके बाद लिखिए यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. और हमेशा याद रखिए अगेन इक्वेशन का जो भी नंबर दिया है उसको एक सर्कल डाल के लिखो जिससे कि वो पता चले कि आप किसको स्पेसिफाई करना चाहते हो. उसके बाद जब आपने वैल्यू पुट कर दी तब आपको क्या मिलेगा 4x प्लस 5y में पुट करना है आपको. तो 4 और x के जगह पे ये पूरा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. कैंसिल किया ये दोनों, सॉल्व करना आप सबको आता है. यहाँ पे ओपन किया है ब्रैकेट को तो 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 3y 6y प्लस 5y इक्वल टू 23. When you solve this one you will get minus y and when you subtract 26 from 23 क्योंकि ट्रांसपोजिशन आपको सबको आता है तो ये -3 होगा. अब ये दोनों को कैंसिल किया तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई. फिर से आपको लिखना पड़ेगा पुट y इक्वल टू 3 इन किस इक्वेशन में पुट करना है आपकी मर्जी है, फर्स्ट में सेकेंड में या थर्ड में. पर थर्ड बहुत छोटा सा है इक्वेशन इसीलिए उसमें पुट करना ज्यादा अच्छा है. तो यहाँ पे हम लोग पुट करने के बाद ये शो करेंगे कि x की वैल्यू क्या निकलती है. तो 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2. तो 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 4 बाय 2. तो वैल्यू आपके पास x की 2 वैल्यू आती है और सोल्यूशन जो आप फाइनल लिखेंगे वो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. ये सोल्यूशन है. और उसके बाद अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो पुट करके LHS और RHS चेक कर लीजिए किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में या 3 में. नाउ नेक्स्ट इन सीक्वेंस we have two equations root 2x plus root 3y equal to 0 and root 3x minus root 8y equal to 0 and we have to find out value of x and y. तो same method से हम इसको फिर से करेंगे. Again give the name of the equations as 1 and 2 and consider any one from them. So from first equation अगर आपने first ली है तो मैं root 2x is equals to minus root 3y लिखूंगी और वहां से x की वैल्यू माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाय रूट 2 होगी. उसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया. फिर आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 क्योंकि आपने ये फर्स्ट से निकाली थी. तो जब आप 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो आपको देखना है. तो जब सेकंड में पुट करेंगे तो सेकंड में था रूट 3 और x साथ में x था तो रूट 3 अब x के जगह पे हम लोग रूट 3y डिवाइडेड बाय रूट 2 पुट करेंगे माइनस रूट 8y एज इट इज छोड़ दो इक्वल टू 0. देन सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा माइनस 3y बिकॉज रूट 3 इंटू रूट 3 होता है डिवाइडेड बाय रूट 2 और ये रूट 8y एज इट इज. अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास ये आएगा 3y माइनस 8 2 16 होता है, रूट में है तो रूट 16y और डिवाइडेड बाय रूट 2 वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0.
तो रूट -3y वैसे लिखिए, √16 का मतलब होता है 4y, और ये 0 जो है वो √2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो -7y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0 बाय -7, दैट इक्वल टू 0। फिर से आपको वही लिखना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, मैं 3 में डाल देती हूँ बिकॉज 3 इक्वेशन बहुत इजी होती है, सॉल्व हो जाती है जल्दी से। तो x इज इक्वल टू -√3, y की जगह पे 0 डिवाइडेड बाय √2। अब आप किसी भी नंबर को 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 ही आएगा। इसीलिए आपके पास फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलता है कि x की वैल्यू भी 0 थी और y भी आपको 0 मिला, और आप आराम से इसको भी वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। देखिए इस इक्वेशन को हम लोग ने जैसे लिखा हुआ दिया था कि इसको सॉल्व करना है, 3x/2 -5/3 इक्वल टू -2, और दूसरी इक्वेशन है x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। तो फ्रैक्शन वाले नंबर को हटाने के लिए अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेके इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करो। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, एलसीएम आया 6, तो न्यूमरेटर अपने पास आएगा 9x - 10y अपॉन 6 इज इक्वल टू -2। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 9x - 10y इज इक्वल टू -12, और आप सपोज कर लीजिए यही आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली सेकेंड को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड में तो वो भी 6 आएगा, और आपके पास इक्वेशन में होगी 2x + 3y इक्वल टू 13/6। तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x + 3y इक्वल टू 13, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे आप सब जानते हैं इनमें से किसी एक को कंसीडर करो, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैंने 9x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 10y लिख लिया। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे 9 को नीचे ले जाना है, तो -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। फिर से लिखेंगे वही चीज, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट से x की वैल्यू को एक्सप्रेस किया y के टर्म्स में। तो यहां पे हमको जो मिलेगा वो है इक्वेशन नंबर 2, 2x, तो x की जगह पे आपको ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, जिसमें आएगा -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, ये x की जगह पे, प्लस 3y एज इट इज इक्वल टू 13 एज इट इज। नाउ अगेन मल्टीप्लाई, ओपन करो ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 3 27y, एलसीएम भी ले लिया साथ में, और यहाँ पे आपके पास 13 एज इट इज रहेगा। ये देखिए इसको ओपन किया पहले, और साथ में जब एलसीएम लोगे तो ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा, मीन्स 9 और 1 का एलसीएम 9 है। यहाँ पे 2 स्टेप एक साथ लिखिए, ओपन करा है ब्रैकेट को और एलसीएम भी लिया है। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 47y प्लस किया इसलिए, और -24 एज इट इज रहेगा, इसको प्लस का साइन दे दीजिए, 9 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जाएगा -24 प्लस 47y इक्वल टू 9 3 27 एंड इज 117। तो 47y को निकाला 117 प्लस 24 करके, बिकॉज -24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 47y इज इक्वल टू 141 इस साइड में आ गया, तो y की वैल्यू 141 डिवाइडेड बाय 47। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, y इज इक्वल टू 3 आ गया। लास्ट में जैसे हम लोग x निकालेंगे तो फिर से लिखना पड़ेगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। मैं जैसे बोलती हूँ 3 बहुत इजी होती है सॉल्व करने में, इसीलिए उसको लिख लेना, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी टर्म को। तो -12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आएगा -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9। तो आपने इसको सॉल्व किया, आगे आपको ये मिल जाएगा 18/9, ये आएगा 2। तो सॉल्यूशन आपके पास क्या निकला, x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए अब सेम एक्सरसाइज में
Question number 2. Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3. ये इक्वेशन बहुत अच्छा है. इसमें डायरेक्ट उन्होंने x और y अकेले नहीं पूछा है. उन्होंने बोला ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. मतलब यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x एंड y. After getting the value of x and y, find out the value of m also, which satisfy this condition y equal to mx plus 3. इसका मतलब क्लियर है कि जब आप x और y की वैल्यू निकालोगे वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको जो m अननोन है वो मिल जाएगा. तो इसको करना कैसे है? सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज अभी चल रही है तो उसी मेथड से इसको भी कर लेंगे. पर जब आपको सारे मेथड मिल जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. कभी भी एग्जाम में अगर मेथड को स्पेसिफाई किया जाता है तो उसी मेथड से करना, अदरवाइज आप कोई भी मेथड यूज करके x और y की वैल्यू को निकाल सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें वही इक्वेशंस को पहले नंबर 1 और नंबर 2 लिखना है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन 2x plus 3y equal to 11 and the second equation is 2x minus 4y equal to minus 24. अब देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे दोनों में 2x है. तो मैं इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट x 2x ही निकाल लेती हूँ और सेकेंड में पुट कर दूंगी. तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन को आप कंसिडर कर सकते हो. तो सपोज करते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैंने 2x लिया 11 माइनस 3y और उसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया और यहाँ पे लिखा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था मुझे? वैल्यू ऑफ 2x. ये इंपॉर्टेंट है 2x, क्योंकि मैंने वहां पे 2x में डायरेक्ट पुट कर दूंगी. तो अब क्या होगा हमारे पास, हम लोगों ने लिखा यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 2x की जगह पे 11 माइनस 3y. आप फिर से ध्यान से देखिए, हमने 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y निकाली थी फर्स्ट से और उस पूरे को 2x को हम सेकेंड में पुट करेंगे. तो 2 इंटू एक्स नहीं करना, डायरेक्ट इस 2x की जगह पे 11 माइनस 3y पुट करना. तो 11 माइनस 3y पुट किया, फिर भी माइनस 4y तो है ना अभी, तो भी कॉपी माइनस 4y एज इट इज इक्वल टू माइनस 24. अब 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 हो गया. तो 11 माइनस माइनस प्लस 24 और इधर हो जाएगा 7y. मतलब हम लोग लिख सकते हैं 7y इज इक्वल टू 35. तो y की वैल्यू हो गई 7 5 35. एक आंसर आ गया. देन पुट वैल्यू ऑफ y कहां पे पुट करेंगे बताइए? इक्वेशन नंबर 3 में. बहुत इजी रहता है वो. तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5, बिकॉज आप y की वैल्यू 5 निकाल चुके थे. तो ये 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 आएगा. तो ये हो गया माइनस 4 और आएगा x की वैल्यू माइनस 4/2 मतलब माइनस 2. ये आंसर आता है x के लिए. फॉर सॉल्विंग m, अब ये जो माइनस 2 x की वैल्यू निकली थी और 5 y की वैल्यू निकली थी, अब उसको हम उस गिवन इक्वेशन में डाल देंगे. तो यहाँ पे लिख लीजिए पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3. ये जो आपको एक और इक्वेशन दी थी क्वेश्चन में उसमें. तो y की वैल्यू आपके पास 5 थी, m अननोन है, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3. तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3. तो ये 3 को शिफ्ट कर दो आप इधर, नेगेटिव हो जाएगा ये माइनस 2m एज इट इज. तो ये 2 इक्वल टू माइनस 2m. इट मीन्स वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू माइनस 2/2, दैट मीन्स माइनस 1. ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन निकलता है. देखिए अब एक्सरसाइज 3.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. देखिए आप ध्यान से पढ़िए, ये फ्रॉम नहीं लिखा है, ये फॉर्म लिखा है. इसका मतलब अभी तक आपने जितनी भी सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, उसमें आपको इक्वेशंस बना के उन्होंने दी थी. बट अब इस क्वेश्चन में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा. यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू लास्ट वर्ड, मेक इक्वेशन बाय ओन एंड देन solve according to the given question. Here it has written solve or find the value by substitution method. तो क्या करेंगे उसमें? फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, पहले तो फॉर्म करना पड़ेगा. तो आपको वर्ड प्रॉब्लम पहले पढ़ के आप इक्वेशन को पहले बनाइए. तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26
and one number is 3 times other. Find the numbers. अब ये numbers कौन से हैं, इनको हमें suppose करना पड़ेगा. तो क्या लिखना है सबसे पहले solution में, let the numbers are, और लिखिए let us suppose numbers are, दो वेरिएबल्स लेने, सपोज किया एक x लिया तो दूसरा y ले लिया. उसके बाद इजीली, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, तो फर्स्ट कंडीशन जो उन्होंने दी थी उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला इक्वेशन बनना चाहिए x प्लस, सॉरी डिफरेंस है तो x माइनस, या आप हटा दीजिए माइनस आएगा इधर, x माइनस वाई इक्वल टू 26. एंड सेकेंड कंडीशन में बोला है उन्होंने वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, सो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो x इज इक्वल टू 3y. देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ मैंने लिखा x माइनस वाई, इसका मतलब x बड़ा है. जब अगर ये नंबर ग्रेटर है y से, तो सेकेंड कंडीशन में उन्होंने बोला वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो 3 जो है वो स्मॉलर नंबर में ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी तो वो इक्वल बनेगा ग्रेटर के. अगर आपने गलती से 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर तो पहले से ही बड़ा था, अभी और बड़ा हो जाएगा. तो वो इतना बड़ा नंबर एक छोटे नंबर से इक्वल नहीं हो सकता था. या तो आप उसको x अपॉन 3 लिखोगे तो करेक्ट होगा, अदरवाइज x इक्वल टू 3y लिखने से भी कंडीशन वो सेटिस्फाई होती है. फिर से आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब फिर से मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 3y जो इक्वेशन नंबर 2 में दी थी डायरेक्ट पुट कर देती हूँ फर्स्ट में. तो यहाँ पे सिर्फ लिखना पड़ेगा पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. तो पुट किया आपने तो वो आया 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, मतलब 2y इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 26 बाई 2 मतलब 30. ये एक वैल्यू मिल चुकी है. फिर से आप ये पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू या पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही इजी थी, तो वहां पे आया x माइनस 13 इज इक्वल टू 26. तो x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, तो ये आ जाएगा 39. अब आपके पास जो सॉल्यूशन निकली है, वैल्यूज जो निकले, दो नंबर्स निकले हैं, उसमें x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू 13. अब आपको इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि डिफरेंस आता है कि नहीं आता है दोनों का सेम. तो 39 में से 13 को माइनस किया, 26 आ गया. नाउ सी द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर. तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 39 भी आ जाएगा. इसका मतलब ये जो वैल्यूज आपने निकाली है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, इक्वेशन जो फॉर्म की थी वो करेक्ट थी. जब इक्वेशन करेक्ट होगी तो आंसर्स भी अपने आप करेक्ट आ जाएगा. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम. द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degree, find them. और आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. दैट मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री विद ईच अदर. तो यहाँ पे दो एंगल कौन से हैं पता नहीं, बट उनका सम 180 है, इतनी कंडीशन हमें पता है. और उन्होंने ये भी बोला द लार्जर एंगल ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, मतलब उन दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है. या फिर बोल सकते हैं कि द ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्मॉलर एंगल एंड 18, मीनिंग एक ही बात हो गई उनका. तो सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, फिर से हमें सपोज करना पड़ेगा कि कोई दो एंगल्स जिनका सम 180 है. सो लेट द एंगल्स आर x एंड y डिग्री. जो भी आंसर आएगा आपको डिग्रीज में लिखना है. फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन राइट x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. आप मुझे बताइए क्यों? क्योंकि उन्होंने सप्लीमेंट्री बोला था, इसीलिए दोनों एंगल का सम 180 होना ही चाहिए. ऑल्सो मतलब जो सेकेंड कंडीशन थी उसमें आपकी मर्जी है, अगर आप x इज इक्वल टू y प्लस 18 लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, बिकॉज ग्रेटर एंगल एक्सीड स्मॉलर एंगल बाय 18. या फिर आप इसको x माइनस वाई इक्वल टू 18 लिखना चाहते हैं तब भी वो करेक्ट होगा. मर्जी आपकी है, आप इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं. अगर आप इसी को सेकेंड वाले को लेते हैं तो ये इजी इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए मिल जाएगा. फिर आप क्या लिखेंगे, पुट
value of x from second in first. We have, अब क्या लिखना है, सेकेंड से आपने y प्लस 18 को फर्स्ट में पुट करना है, तो आएगा y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. ये y प्लस 18 आपने x की जगह पे पुट किया है, y ये वाला एज इट इज लिखा है. अब ये आ गया 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18. अब आप इसको माइनस करेंगे और आपको वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी. तो आपने क्या पुट किया था, 2y इज इक्वल टू, माइनस करना था 162 आया डिग्री में, तो y की वैल्यू 162 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 81 डिग्री, मतलब y की वैल्यू आपको 81 डिग्री मिल गई. फिर से आप वही लिखिए, पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन नंबर, आपकी मर्जी, अब आप किसी में भी पुट कर दीजिए. छोटी सी इक्वेशन है नंबर 2, इसीलिए इसमें पुट किया है. x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 था, तो अब आपने y की जगह पे 81 लिखा और ये 18 एज इट इज था. जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो आपको 99 मिल जाएगा. अब आपके पास सॉल्यूशन जो है वो लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री. आप इसको चाहें तो फिर से प्लस करके एक बार देख लीजिए, तो आपको 180 डिग्री मिल गया. इसका मतलब आपके पास ये जो लिख रहे हैं वो आंसर एग्जैक्ट है, करेक्ट है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3rd नंबर का वर्ड प्रॉब्लम में, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 750. Find the cost of each bat and each ball. अब इसमें उन्होंने कंडीशन तो दे दी, बट बैट और बॉल का प्राइस क्या है वो मालूम नहीं है, उसी को फाइंड आउट करना है, तो उसको सपोज करना पड़ेगा. तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज x and cost of each ball is rupees y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने सबसे पहले बताया था कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स हैं, तो 7x प्लस 6y ये दोनों मिला के 3800 रुपीज में आए. इसको इक्वेशन नंबर हम लोग ने 1 दिया. ऑल्सो उन्होंने बोला था कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स लिया सेकेंड कंडीशन में, तो 3 बैट्स तो 3x हो गया और 5 बॉल्स मीन्स 5y, और इन दोनों का मिला के 1750 होता है. उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 दिया. अब आपने ये इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखने के बाद इक्वेशन खुद ने बनाई, क्योंकि आपने वर्ड प्रॉब्लम में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपने पढ़ने के बाद इक्वेशन बना दी. अब इसको सॉल्व करना है और अगेन सेम प्रोसेस से. तो आपको कोई भी एक इक्वेशन कंसिडर करनी है. लेट अस सपोज आई विल टेक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1, 7x इक्वल टू 3800 minus 6y. तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया और फिर ये लिखा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 2 आपके पास थी 3x. अब मैं x नहीं लिखूंगी, 3 इंटू x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7. उसके बाद प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. आप वापस इसको एलसीएम लेने के साथ साथ ओपन करिए ब्रैकेट, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 11 माइनस 3 6 ज़ा 18y प्लस 7 5 ज़ा 35y इक्वल टू 1750 इंटू 7. देखिए मैंने इसको ओपन भी किया, एलसीएम भी लिया और डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया. तो जब आप इसको ये इन दोनों को सॉल्व करके प्लस 17y आएगा. पहले मैंने माइनस 17 लिखा था, वो रॉन्ग था क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है, इसलिए प्लस 17y. और इनको मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली ये 7 है. व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बिकम्स 12250, 12,250. देन आफ्टर दैट 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस
11400. When you subtract it, 17y is equals to 850. तो यहाँ से आपको y की वैल्यू जो मिलेगी वो आएगी 850 अपॉन 17. तो ये आ जाएगा 50. y इज इक्वल्स टू 50 आ गया. मतलब एक बैट की जो बॉल की वैल्यू है वो 50 रुपीज़ है. फिर आप लिखिए यहाँ पे पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1. या आप चाहे तो 3 में भी डाल सकते हैं. 3 बहुत छोटी सी इक्वेशन है, जल्दी सॉल्व हो जाएगी, तो 3 लिख दीजिए. और यहाँ पे लिखिए वी हैव x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 y की वैल्यू, और डिवाइड कर दीजिए उसको 7 से. तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 7. सो इट इज़ 3500 डिवाइडेड बाय 7. तो इसको लिखेंगे हम 500. ये x की वैल्यू आई. तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू ₹50 बिकॉज y की वैल्यू 50 निकली थी. ये आपके पास आंसर है. अब आपके पास एक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे. बुक में है ये क्वेश्चन 4th नंबर पे. द टैक्सी चार्जेस in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, charge paid is 105 rupees. For a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? So इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एक कंडीशन है इसके साथ कि आपको x और y निकालने के बाद 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो उसको कितना फेयर देना पड़ेगा वो भी आपको पता करना है. तो पहले तो इक्वेशन बननी चाहिए और उसमें भी हमको सपोज करना पड़ेगा कि फिक्स चार्ज क्या है. तो आपको लिखना पड़ेगा पहले लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹x एंड चार्ज पर किलोमीटर बी ₹y. मतलब अगर आप 1 किलोमीटर कवर करते हो तो 1 इंटू वाई, 5 किलोमीटर कवर करते हो तो 5 इंटू वाई, ये उसका फेयर होगा. प्लस फिक्स्ड चार्ज भी आपको लेना है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनती है क्योंकि आपने 10 किलोमीटर कवर किया था और 105 रुपीज आपने पे किया उसको. तो इक्वेशन बनेगी x फिक्स्ड चार्ज है, 10 किलोमीटर के हिसाब से 10y रुपीज उसको दे रहे हो और ऑन टोटल 105 रुपीज पे किया. उसके बाद आपको सेकेंड कंडीशन में उन्होंने 15 किलोमीटर कवर किया था और 155 रुपीज पे किया था. तो आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155. अगेन प्रोसेस सेम है. 2 इक्वेशन बनाइए, किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दीजिए. बहुत आसान है, दोनों में x है, डायरेक्ट पुट कर देंगे. तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y पुट इन 2 लिख दीजिए. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. तो जो फर्स्ट इक्वेशन आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 क्योंकि आपने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया है. इन दोनों को सॉल्व करेंगे 5y और 155 में से 105 को माइनस करना है. तो आपके पास कितना आ जाएगा 5. तो y इक्वल टू आपके पास आएगा 10 50 अपॉन 5. तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 10. तो ये 10 रुपीज आ गया आपके पास. फिर हमें फिर से लिखना है पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए. मैंने फर्स्ट में पुट किया तो वो था आपके पास x प्लस 10y इक्वल टू 105. ये मैंने सिंस लिखा क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 मैंने पीछे से चेक किया कि मैंने करेक्ट लिखा है नहीं. तो अब x तो एज इट इज रहेगा. 10 इंटू वाई कितना था 10 और ये आ गया 105. तो आपके पास यहाँ पे 105 10y ना 105 माइनस 100 मतलब ये 5 आया. x इक्वल टू 5 मतलब फिक्स चार्ज आपके पास सिर्फ 5 रुपीज है. सो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू ₹10. ठीक है. सो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर
इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स चार्ज प्लस 25y। तो फिक्स चार्ज आपके पास था 5 रुपीज, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज निकला था, तो ये आपके पास 255 रुपीज उसका टोटल फेयर होगा। देखिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 व्हेन यू ऐड 2 both the side numerator and denominator, and if you add 3 both numerator and denominator it becomes 5/6 and find the fraction। ऐसा कुछ आपके बुक में है। अगेन आप उसको जब अच्छे से रीड करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि एक फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई नंबर होगा, क्या है वो नंबर दैट वी डोंट नो। अगेन अपन को सपोज करना पड़ेगा। व्हेन वी ऐड 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। व्हेन वी ऐड 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो ऐसा कौन सा फ्रैक्शन होगा जिसमें ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो इसमें हम लोग को जैसे क्वेश्चन पढ़ लिया तो समझ में आता है, फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 नंबर शुड बी एट न्यूमरेटर एंड 1 शुड बी एट डिनोमिनेटर। तो व्हाट आर दीज नंबर्स, लेट अस सपोज x एंड y। अगेन बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग कोई भी पर्टिकुलर डिजिट को कंसिडर डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच नहीं सकते क्योंकि नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो फाइंड आउट करेंगे x और y को सपोज करते हुए, एक इक्वेशन को पहले फॉर्म करेंगे और उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो सोल्यूशन में हमारे पास एज यूजुअल सबसे पहली स्टेटमेंट जो होती है वो लिखेंगे लेट x बी द न्यूमरेटर एंड y बी द डिनोमिनेटर। तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगा, x अपॉन y बी फ्रैक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ऐसे कुछ आंसर आएगा तो अपॉन में लिखना है उसको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्लस करते हैं 2, x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, देन इट इज इक्वल टू 9/11। ये उन्होंने बोला है। When 2 is added to the numerator and denominator, then the fraction becomes 9/11। बट अब ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, सॉल्व करने के लिए बहुत इजी बनेगा। अगर आप ऐसे में वैल्यू निकालना पुट करेंगे तो चांसेस होते हैं कि जब ट्रांसपोज करते हैं टर्म्स को तो साइन मिस्टेक हो सकती है। एंड वी कैन नॉट कैंसिल दीज टू। कई बार होता है बच्चों को लगता है यहाँ भी 2 लिखा है ये भी 2 लिखा है तो वी मस्ट कैंसिल। ये कैंसिल नहीं हो सकते बिकॉज दीज आर बाइनोमियल एट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर ये इनटू में होता तो शायद तो वे 2 कैंसिल हो सकते थे, बट प्लस है या माइनस है तो इनको कैंसिल नहीं करना, ये हाफ पार्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो अभी आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दीजिए। तो व्हेन मल्टीप्लाई 11 with the numerator x plus 2 and 9 with the denominator y plus 2, तो इक्वेशन ऐसी कुछ बनेगी। बट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 11x plus 22 is equals to 9y plus 18। तो इक्वेशन बनी 11x, 9y को इस तरफ शिफ्ट किया नेगेटिव हो गया, 18 22 उधर शिफ्ट हो गया तो -22। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये अब आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 जिसको बोल रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। उसके बाद आपके पास सेकेंड कंडीशन उन्होंने बोली थी, व्हेन 3 इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। ये कंडीशन उन्होंने बुक में क्वेश्चन में लिख के दी है। तो अभी फिर से हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लेके आना पड़ेगा। तो 6 इज मल्टीप्लाई विद x प्लस 3, मतलब न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाई विद द अदर डिनोमिनेटर। सिमिलरली 5 इज मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 3। अब ये ब्रैकेट ओपन करके इक्वेशन बना लीजिए, 6x प्लस 18 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18। आप सबको पता है इसको सॉल्व करते कैसे हैं। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3 विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है, आप सबको पता है कैसे करना है, इसीलिए अब मैं इसको लिख के डायरेक्ट बोलूंगी, बीच में आपको लिखते हुए ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं यहां से 11x इज इक्वल टू लिख रही हूं -4 प्लस 9y। इसको इक्वेशन नंबर 3 नहीं अभी देंगे, अब देंगे जब आपने उसको x की वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ। फिर यहाँ लिखा पुट
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट से उसको एक्स की वैल्यू निकाली है. तो वी गेट 6x की जगह पे -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11. उसके बाद -5y एज इट इज इक्वल टू -3 एज इट इज. अब ये एलसीएम भी लेते जाएंगे और मैं साथ में ओपन भी करूंगी. देखिए ओपन करूंगी तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डायरेक्ट उधर जाएगा. तो ये -24, 6 9 54y -11 5 55y इक्वल टू -3 इंटू 11. होप कि ये सबको समझ में आ रहा होगा. जिस किसी को ना समझ में आए कहीं भी प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर पुट करके पूछ लीजिएगा. तो ये -24 और यहाँ पे -5050, बिकॉज ये मेरे पास 54 है, 54y है ये. इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ y आएगा, -y. और यहाँ पे हो गया -33. देन -y इक्वल टू -33 प्लस 24 -y इक्वल टू 13 - 4 9 विद माइनस साइन आया तो y की वैल्यू आपके पास +9 आ गई. फिर लिखा पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर, किस में डाल दूं? अगेन 3 में. थर्ड इक्वेशन बहुत इजी है, इसीलिए x इज इक्वल टू, उसमें हमारे पास आता है -4 प्लस 9 इंटू y की वैल्यू ऑलरेडी 9 है और अभी आपके पास ये 11. तो ये हमारे पास आएगा -4 प्लस 9 9 81. अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है. तो ये आएगा 11 - 4 7 दिस 77 अपॉन 11. तो x की वैल्यू आपके पास क्या निकलती है? 7. x इक्वल टू 7. तो आपके पास फ्रैक्शन क्या होगा? तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन x अपॉन 7 था, x बाय 7 मतलब 7 अपॉन 9. ये हमारे पास वो सोल्यूशन है जो इन दो कंडीशंस को फॉलो करते हुए निकला है. सो आंसर विल बी 7 अपॉन 9. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है. अब इस लास्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है. और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी है क्योंकि जनरली बच्चे इसमें इक्वेशन फॉर्म करने में मिस्टेक करते हैं. तो पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ. ये जो भी आपकी बुक में है आप इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा. तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है, 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो जैकब और सन की बात हो रही है, मतलब जैकब फादर और उनके सन की बात हो रही है. और 5 years आफ्टर उनकी एज कितनी थी उन लोगों की, और 5 years अगो कितनी थी. तो वो सब हमें कंडीशन याद रखनी है. तो इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में रखना है कि जैकब अगर फादर है तो वो हमेशा ही एज में बड़े होंगे, चाहे वो 5 साल पहले की बात हो या 5 साल बाद की बात हो, हमेशा वही बड़े होंगे. तो इसका मतलब ये है कि अगर बेटा छोटा है तो उसमें ही हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट बिकम्स इक्वल विद द फादर्स एज. तो उसके लिए हमें फिर से सपोज तो करना ही पड़ेगा कुछ. तो लेट अस सपोज लिखते हैं यहाँ पे, लेट एक्स बी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब. जैकब को यहाँ पे फादर कंसीडर करना है आपको, ध्यान से पढ़िएगा भाई. देन वाई बी द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ऑफ हिज सन, ऐसे लिख लीजिए. अब आपके पास देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, इस हेंस का मतलब क्या होता है. हेंस का मतलब यहाँ पे आफ्टर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्लस होगा. तो अब आपके पास यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मैं ये लिख रही हूं, आफ्टर 5 years देयर एजेस, मतलब उन लोगों की एज 5 साल के बाद. फादर की होगी x + 5 और सन की होगी y + 5. 5 साल बाद दोनों बढ़ जाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट एज थी. एंड बिफोर यानी 5 years अगो बोल सकते हैं, 5 years अगो एंड 5 years अगो देयर एजेस वॉज, क्योंकि पहले 5 साल पहले कितने थे इसीलिए उनको माइनस करके दिखाना है. ये आपने रिस्पेक्टिवली लिख दिया, किसके लिए? फादर्स के लिए और उसके बेटे के लिए. अब
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइनल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी, 5 साल के बाद फादर की एज x+5 थी, सन की एज y+5 थी, पर ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, फादर तो बड़े हैं। अगर बड़े में आप इसमें यहाँ पे 3 टाइम्स बोला है तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो और बड़े हो जाएंगे, तो हमें 3 कहाँ मल्टीप्लाई करना चाहिए, y+5 में। तो ये x+5 इज इक्वल टू 3y+15। अब आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करो और ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट होगी, क्योंकि 5 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल इक्वल टू 10। सिमिलरली उन्होंने बोला था 5 years ago 7 टाइम्स उसके अपने बेटे के बराबर है, तो लिखना पड़ेगा ऑल्सो 5 years ago उनकी एज ऑलरेडी हम लोग पहले से मेंशन करके रख चुके हैं। यहाँ पे मैं पहले से समझा रही हूँ कि वो इक्वल है, बट वो इक्वल नहीं है। वो इसलिए पूछ के आपसे बताना पड़ रहा है कि 7 मुझे कहाँ लेना चाहिए। फादर में लोगे तो वो तो पहले से ही बड़े थे, इसीलिए सन में लेना। तो x में -5 के साथ और यहाँ पे 7y-35। तो जनरल इक्वेशन बनी हमारे पास, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी -35 + 5। तो इक्वेशन आई x - 7y = -30। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब एज यूजुअल जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे आप करिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने x की वैल्यू निकाली 10 + 3y, पुट इन 2 लिख दिया मैंने यहीं पे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो x के जगह पे आया 10 + 3y -7y पहले से था, -30 पहले से था। सॉल्व किया तो इसको -4y लिखा, -30 और ये 10 उस तरफ शिफ्ट होके -10 बना, तो -4y = -40। तो y की वैल्यू आपके पास 40/4, नेगेटिव साइन कैंसिल करने के बाद 10 years आ गई, मतलब सन की एज आपको मिल गई। अब आप यहाँ पे लिखेंगे पुट y = 10 इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी पुट करो जो मर्जी आए आपकी, इक्वेशन नंबर 1 या 2। मैंने 1 लिखा है तो हमें क्या मिलेगा वो लिखते हैं, x - 3 × 10 = 10, x - 30 = 10, hence x = 10 + 30, that means 40 years। तो फाइनल आंसर आपके पास ये लिखना पड़ेगा, देयर प्रेजेंट एज मीन्स हम लिख सकते हैं जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 years, बिकॉज हम लोगों ने जैकब को x दिया था, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, और हिज सन्स प्रेजेंट एज वॉज 10 years, क्योंकि y = आपने 10 निकाला था। दिस इज द correct answer. If you want to verify, you can.